Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that presently we are dealing with the topic of semiconductors, and in the previous lecture we were able to complete the topic up to the formation of p-n junction, and we completed the concepts of diffusion current and the drift current. We understood the difference between the diffusion current and drift current, along with the directions in which the diffusion current flows and what are the factors which help in the flow of diffusion current, and the similar things we studied for the drift current. Okay, so in today's lecture what we're going to do is we're going to move on to the next topic, and we're going to start with the biasing of the p-n junction diode. ठीक है, हम शुरू करने वाले हैं with the biasing of the p-n junction diode. ठीक है, तो today's lecture हो सकता है थोड़ा छोटा हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने नोट्स बना लिए हैं, थोड़ा लिख लिया है मैंने पहले ही, बिकॉज अदरवाइज मेरी राइटिंग बहुत लाइक ड्यू टू द माय प्रॉब्लम इन माय हैंड, क्योंकि बीमारी की वजह से लाइक ड्यू टू माय डिजीज की वजह से मेरे को हाथ में लिखने में थोड़ी दिक्कत है, तो it will take some time. So मैंने इसे थोड़ा लिख लिया पहले फॉर द राइटिंग से कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो. सो आपको समझते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सोचा है कि जितना करना है उतना ही करेंगे और कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. ठीक है, so let's just start with the topic of today's topic, that is the biasing of the p-n junction. ठीक है, so we already know that there are two types of biasing. जब भी हम p-n junction की biasing की बात करते हैं, we know there are two types of biasing. एक आपके पास होती है forward biasing and one is the reverse biasing. And as you can clearly see, I have written here that this is one of the most important topics from this chapter. क्यों? Because every year a direct or indirect question is asked from forward biasing or reverse biasing. Directly मतलब ये है कि डायरेक्टली पूछ लेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, हाउ फॉरवर्ड बायसिंग अफेक्ट्स द डिप्लीशन लेयर, या तो वैसे पूछ लेगा. अदरवाइज ही मे द एनटीए माइट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट वी कॉल इट दैट रेक्टिफाइज से क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड ही विल आस्क यू कि यार ये इसमें फॉरवर्ड बायसिंग हो रही तो कैसे होगा, रिवर्स बायसिंग हो रही तो कैसे हो रहा है. व्हेन यू आर डीलिंग विद रेक्टिफायर्स यू आर इनडायरेक्टली डीलिंग विद द फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग. व्हेन यू आर डीलिंग विद सोलर सेल, व्हेन यू आर डीलिंग विद Zener diodes, you are dealing with reverse biasing or forward biasing. इस तरह से आप डील करते हो. So that is why I'm telling you every year a question is being asked from this topic, whether the question might be a direct question, इससे पूछा जा सकता है, otherwise it may be an indirect question. So you have to be very well prepared from this you must be very well prepared for the NEET examination, because यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा. ठीक है, Now, before we move forward, मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि this is the symbolic representation of the p-n junction diode. ठीक है, this is the symbolic representation of p-n junction diode. This triangle suggests the p side, and this line suggests your n side. So this is the symbolic representation of the p-n junction diode, and we will be using the symbolic representation in our circuit diagrams moving forward. ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. This is something which जो कोचिंग सेंटर्स वाले भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, and I hope आपको समझ में आया होगा. ठीक है, वहाँ पे अगर नहीं आया तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, दैट यू माइट फील कंफर्टेबल, आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग. ठीक है, सो सबसे पहले हम बात पढ़ने वाले हैं फॉरवर्ड बायसिंग. तो हम पहले समझते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग होती क्या है. ठीक है, सो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? अ पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड. किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस कब कहेंगे? व्हेन वी विल से दैट द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस तब कहते हैं if the positive terminal of the battery is connected to the p side and the negative terminal of the battery is connected to the n side of the p-n junction diode. इस चीज को समझते हैं. Let's just try to understand this thing with the help of a circuit diagram. उसके बाद we will study कि किस तरह से काम करता है, what is the meaning of this graph and how this things works. Okay, everything works. ठीक है, so let's just try to understand this thing, what is the meaning of forward biasing. ठीक है, so whenever you look at the circuit और आप सर्किट को देखते हो, and this is nothing but the symbolic representation of p-n junction diode जो हमने यहाँ पे भी पढ़ी. This is also symbolic representation of p-n junction diode, तो हमने यहाँ पढ़ा. तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, instead of writing p plus and ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब आपका p साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज कनेक्टेड टू द p साइड, तो अब आप क्या कहते हो? एंड द नेगेटिव साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो हम कहते हैं कि आपके सर्किट की क्या हो रही है? फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है. दिस इज शोज द फॉरवर्ड बायसिंग. ठीक है, तो ये चीज आपके लिए क्लियर है कि जब आप क्या करते हो, जब p साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन वी से दैट द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड. ठीक है, अब एक चीज का यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए उसमें थोड़ा आगे चलते हैं, पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ग्राफ क्या बताता है एंड व्हाट इज द हाउ दिस थिंग एक्सप्लेन्स. इसके थ्रू आप इस ग्राफ को किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, सो बहुत ध्यान से सुनिएगा. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई वांट यू टू हियर मी वेरी केयरफुली. ओके, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा.
जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है, ठीक है, अब आपको एक बात पता है, इन द फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर वी नो दैट whenever a p-n junction diode functions, from the previous lectures we know that in a p-n junction diode, that in a p-n junction diode जो होता है, from previous lectures we know that in a p-n junction diode में क्या होता है, आपके यहाँ पे क्या होता है, एक डिप्लीशन लेयर काम करते हैं, दिस इज नोन एज योर डिप्लीशन लेयर, ठीक है, एंड हाउ डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड, एंड डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड एंड हाउ फिक्टिशियस एक फिक्टिशियस बैटरी हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे काम करती है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स. इफ यू हैव नॉट सीन दैट प्रीवियस लेक्चर, प्लीज आप उस लेक्चर को देख के आए, तभी आपको ये डिप्लीशन लेयर का कॉन्सेप्ट समझ आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड हाउ डिप्लीशन लेयर अफेक्ट्स द पीएन जंक्शन डायोड, द वर्किंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इज अफेक्टेड बाय द डिप्लीशन लेयर, किस तरह से करती है, ठीक है. सो वी नो दैट देयर इज अ डिप्लीशन लेयर व्हेनेवर वी फॉर्म अ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा होता क्या है, ठीक है. जब भी आप सर्किट की क्या करते हो, फॉरवर्ड बायसिंग करते हो, whenever in a circuit of forward biasing occurs, ठीक है. तो होता क्या है, इन द फॉरवर्ड बायसिंग जब होती है तो आपको समझिए, फॉरवर्ड बायसिंग समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि आपके पास क्या है, एक डिप्लीशन लेयर होती है, ठीक है. और ये जो डिप्लीशन लेयर होती है वो इस तरह से फंक्शन करती है कि इट वी एज्यूम दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ फिक्टिशियस बैटरी दैट इज बीइंग ऑपरेटेड हियर, ठीक है. तो हम ये मान के चलते हैं, ये जो फिक्टिशियस बैटरी आपके पास है, ये जो फिक्टिशियस बैटरी आपके पास है, इसका पोटेंशियल कितना है, वीबी. लेट अस अज्यूम द पोटेंशियल वीबी इज जनरेटेड बाय द फिक्टिशियस बैटरी, जो आपके पास कहाँ पे, विच इज प्रेजेंट इन द डिप्लीशन लेयर, विच इज प्रेजेंट इन द डिप्लीशन लेयर. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, डिप्लीशन लेयर आपको नहीं पता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू रेफर टू माई प्रीवियस वीडियो. वहाँ पे हमने वी हैव स्टडीड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन लेयर, हाउ डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोटेंशियल, हाउ दिस पोटेंशियल इज जनरेटेड. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है. तो वहां से समझिए, ठीक है. आप बहुत ध्यान से सुनिएगा. आप देखिए इस डिप्लीशन लेयर के पास खुद का एक पोटेंशियल है वीबी, ठीक है. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या हो क्या रहा है. तो होता है क्या है कि व्हेन वी सी दैट व्हेनेवर दिस सर्किट इज इन द फॉरवर्ड बायसिंग, तो होता क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन साइड, ठीक है. अब ध्यान से सुनिएगा होगा क्या, ठीक है. सो व्हेन इन फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है, इन फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इन फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, the applied voltage opposes the depletion opposes the किसको करता है, पोटेंशियल बैरियर को. it opposes the potential barrier, opposes the potential barrier, it opposes the potential barrier, ठीक है. ध्यान से सुनिएगा इस चीज को. so as a result what happens, as a result of which, because it opposes the potential barrier, so as a result what happens, as a result the height of the potential barrier is reduced. As a result the height of the potential barrier is reduced. The height of the potential barrier is reduced, ठीक है. अब ऐसा होता क्यों है, let's just try to understand why this thing is happening. Why this thing is happening, we will try to understand here. तो देखिए होता क्या है, let's just suppose here we have a, ठीक है, let's just suppose here we have a let's just say we have a door, ठीक है. अब होगा क्या, एंड अब हमने क्या किया, we applied force from here and we applied force from here. इसको और भी अच्छे से समझने के लिए, instead of taking the analogy of a door, let's just try to understand this thing basic with the basic concepts, okay. देखिए, your fictitious battery is working. This is the positive terminal of the fictitious battery and here we have the negative terminal of the fictitious battery, ठीक है. So as a result the potential difference is acting across this side, ठीक है. And due to the battery, which due to the original battery, इसको यहीं से समझ लेते हैं. देखिए, this is your fictitious battery and the positive terminal is here and the negative terminal is here, then it means that that potential difference is working across this side. और आपकी जो ये जो बैटरी है जिसका प्लस यहाँ है जिसका नेगेटिव भी है, this is the original battery which is connected to the circuit. This is fictitious battery which जो ऐसा होती नहीं है बट हमें लगता है बैटरी की तरह फंक्शन करती है, ठीक है. So here's the battery and here's the fictitious battery. इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इधर को है, बिकॉज
इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में है एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस डायरेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे बोथ अपोज ईच अदर। जब वो अपने एक दूसरे को अपोज करेंगे तो उस वजह से क्या होगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग, वो चीज आपको ध्यान रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, whenever we talk about the height of the potential barrier, we are talking about the potential difference, we are talking about the potential difference, हम potential difference की बात करते हैं, ठीक है। So what we are saying here is as a result the potential barrier is reduced by reduction in the potential barrier, हमारा मतलब ये है कि the net potential difference across the depletion layer gets reduced। अगर net potential difference gets reduced कर जाता है तो देखिए तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। होगा क्या कि आप ना ओरिजिनल सिचुएशन शुड हैव बीन लाइक दिस, और जो आपकी ओरिजिनल सिचुएशन है विदाउट एनी फॉरवर्ड बाइसिंग, आपकी सिचुएशन इस तरह से होनी चाहिए थी, तो शुड हैव बीन द पोटेंशियल बैरियर, इस तरह से आपका कर्व होना चाहिए था। बट होता है क्या, द मोमेंट यू कनेक्ट अ बैटरी एंड यू फॉरवर्ड बाइस योर पीएन जंक्शन, तब होता है क्या है, आपका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिड्यूस कर जाता है बाय वी, आपका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिड्यूस कर जाता है बाय वी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, दिस इज हाउ दिस कर्व ऑपरेट्स। यहाँ पे ये जो चेंज है, दिस इज द चेंज व्हिच आई बीन सजेस्टिंग, ठीक है। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस उतने से कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अपोजेस द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज बीइंग अप्लाइड अक्रॉस द फिक्टिशियस बैटरी और अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इस ऑपोजिशन की वजह से क्या होगा, इस ऑपोजिशन की वजह से क्या होगा, the width of the depletion layer gets reduced। इस ऑपोजिशन की वजह से क्या होगा, width of depleशन layer gets reduced, ठीक है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्लियर होगी। और इसमें कुछ चीजें और भी हैं जैसे विच इज वेरी थियोरेटिकल, तो उसके लिए आपको अपनी रेफरेंस बुक को रेफर करना है, बट आई विल बी टीचिंग यू, मैं आपको वो चीजें यहाँ पे बता दूंगा, आई विल वर्बली टेल यू ऑल दोस थिंग्स, बट यू मेक श्योर यू रेफर टू योर रेफरेंस बुक फॉर दोस टॉपिक्स, ठीक है। एंड आई एम अगेन राइटिंग हियर दैट दिस इज अ हाईली थियोरेटिकल टॉपिक, सो प्लीज रेफर टू योर रेफरेंस बुक, ठीक है। आई विल बी गिविंग यू ब्रीफ आउटलाइन for everything that is written that is being written in your that has been written in your reference book, ठीक है। आपको वहां पे समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए समझते हैं कि होता है क्या, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे और भी बताना चाहता हूँ, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, होगा क्या, ठीक है। नाउ the majority carriers of the electrons in the n region क्या होते हैं, the majority carriers in the n region are the electrons and the majority carriers in the p region, these are your holes, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी नो कि मेजॉरिटी कैरियर्स इन द पी रीजन आर होल्स एंड द मेजॉरिटी कैरियर्स इन द रीजन आर electrons, ठीक है। so what happens is the majority carriers in the end region, these are repelled by the negative potential to the battery B, ठीक है। since negative of the battery is connected to the n side, so as a result the majority carriers in the n region, majority carriers in the n region क्या है आपके electrons, these are repelled, इनको क्या करेंगे, these are repelled, कौन रिपेल कर रहा है, these are repelled by the negative terminal of the battery, ठीक है। these are repelled by the negative terminal of the battery as a result of which these electrons try to move towards the p-n junction diode, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है उनको ये बैटरी रिपेल कर रही है, ये बैटरी जो उनको रिपेल कर रही है, and as a result of these electrons will move towards the p-n junction। क्लियर होगी बात इतनी। सिमिलरली द मेजॉरिटी कैरियर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एन रीजन, सॉरी इन द पी रीजन, उनको कौन रिपेल करेगा, दिस विल बी रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, इस वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे विल मूव दिस पी होल्स विल अगेन मूव टुवर्ड्स द पीएन जंक्शन, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पीएन जंक्शन और यहाँ से आपके होल्स जो है वो मूव कर रहे हैं अक्रॉस द पीएन जंक्शन, ठीक है। ड्यू टू इट, अब आपको ड्यू टू दिस इफेक्ट द डिफ्यूजन करंट टेक्स प्लेस, इसकी वजह से क्या होता है आपके सर्किट में डिफ्यूजन करंट काम करना शुरू करता है, इसकी वजह से आपके सर्किट में क्या काम करना शुरू करता है, योर डिफ्यूजन करंट स्टार्ट्स टू फंक्शन इन द सिस्टम। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग, प्लीज रिमेंबर माय वर्ड्स दैट ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग क्या काम करता है, डिफ्यूजन करंट काम करता है, नॉट द ड्रिफ्ट करंट बट रादर diffusion current। Let me write here that during forward biasing, diffusion current works, diffusion
current is produced. And how this is produced, we already discussed this thing. कैसे this is produced? Let me repeat myself once again. The holes in the p region are repelled by the positive terminal and the electrons in the in the n region are repelled by the negative terminal. Both of them try to move towards the p-n junction, and we already know that being the flow of majority carriers give rise to the diffusion current. इस वजह से जब आपका फॉरवर्ड बाइसिंग होती है आपके सर्किट में क्या जनरेट होता है, डिफ्यूजन करंट जनरेट होता है, ठीक है. सो ऑन अब होता क्या है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पीएन जंक्शन, ठीक है. तो होगा क्या, ड्यू टू इट द डिफ्यूजन करंट विल बी जनरेटेड इन द सर्किट. इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि ऑन क्रॉसिंग द जंक्शन, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ऑन क्रॉसिंग द जंक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल कंबाइन टू ईच अदर, ठीक है. अब यहां से क्या है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं, यहां से होल्स आपके इधर को मूव कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट दे विल कंबाइन, ठीक है, दे विल कंबाइन विद ईच अदर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन होंगे उतने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स आपकी बैटरी में टूटेंगे, ठीक है. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगेन, जितने ज्यादा आपके क्या होंगे, आपके बॉन्ड्स टूटेंगे, जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशंस होंगे, a covalent bond in the p region near the positive terminal of the battery is broken, ठीक है. क्लियर होगी बात, and the liberated electron will enter the positive terminal of the battery, ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स पी जंक्शन की तरफ को मूव कर रहे हैं एंड पीएन जंक्शन की तरफ को मूव कर रहे हैं, होल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द पीएन जंक्शन, एज अ रिजल्ट दे विल कंबाइन, तभी तो डिप्लेशन लेयर बनेगी, दे कंबाइन, ठीक है. जैसे ही वो कंबाइन करेंगे, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन अ कोवेलेंट बॉन्ड इन द पी रीजन नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ब्रोकन. अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अ कोवेलेंट बॉन्ड कहां पे टूटता है, इन नियर द पी रीजन और द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ब्रोकन, एंड द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एंटर कर जाएगा इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड द होल्स उधर को मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है. दिस इज हाउ अ फॉरवर्ड करंट इज जनरेटेड इन द सर्किट, ठीक है. और ये जो इसका फॉरवर्ड करंट जो होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इट इज यूजुअली इन मिली एम्पियर्स, ठीक है. सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. देखिए पहले तो बेसिक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा व्हाट इज द फॉरवर्ड बाइसिंग, व्हाट इज द रिवर्स बाइसिंग. ऐसे पूछ सकते हैं व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉरवर्ड बाइसिंग आर ट्रू. तो आपसे पूछेगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में ड्रिफ्ट करंट काम करता है, डिफ्यूजन करंट काम करता है. वी ऑलरेडी नो दैट इन फॉरवर्ड बाइसिंग का डिफ्यूजन करंट फंक्शन, ड्रिफ्ट करंट काम नहीं करता, डिफ्यूजन करंट काम करता है. एंड फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन अ कोवेलेंट बॉन्ड किस तरफ टूटता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स नियर द पी रीजन. वो पी रीजन के पास क्या करता है आपका क्या कहता है, पी रीजन के पास कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, एंड उस कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर जाता है, एंड द होल जो होता है इट मूव्स इन द पी रीजन में, वो मूव कर जाता है, इट स्टार्ट्स टू मूव एंड सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको फॉरवर्ड करंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है. तो आपको यहाँ पे याद रखना, इन द फॉरवर्ड बाइसिंग वी गेट द फॉरवर्ड करंट, ठीक है. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट द फॉरवर्ड करंट जो होता है, इट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, ठीक है. क्लियर हो गई तीसरी बात, ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द रिवर्स बाइसिंग. तो रिवर्स बाइसिंग में हमें उसका जितना भी आपने पढ़ा उसका ऑपोजिट काम, फॉरवर्ड बाइसिंग का ऑपोजिट काम करता है इन रिवर्स बाइसिंग, ठीक है. सो इन रिवर्स बाइसिंग क्या होगा, इन रिवर्स बाइसिंग द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पी साइड. जैसे नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड, ठीक है. दिस इज नोन एज योर रिवर्स बाइसिंग, ठीक है. अब हम यहाँ पे करते करते वी विल स्टडी दिस रिवर्स बाइसिंग इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, ठीक है. वो किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, only then you will be able to understand the reverse biasing in a much better way, ठीक है. तो होगा क्या, अगेन फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ था, नेगेटिव नेगेटिव के साथ था. इन रिवर्स बाइसिंग इट इज ऑपोजिट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, ठीक है. दिस इज हाउ द रिवर्स बाइसिंग फंक्शंस. आप देखिए रिवर्स बाइसिंग में होता क्या है, लिसन टू मी वेरी केयरफुल, ठीक है. रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा कि आपका क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपका पॉजिटिव जुड़ा होगा, सॉरी पी साइड के साथ आपका नेगेटिव जुड़ा होगा, एन साइड के साथ आपका पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होगा. दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है. इस वजह से होता क्या है, इन
इसमें जो पोटेंशियल होगा, दिस नेगेटिव पोटेंशियल एंड दिस नेगेटिव पोटेंशियल, वी कैन क्लियरली सी दैट द डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल इज अक्रॉस द सेम, इज इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ से भी टर्मिनल पोटेंशियल इधर को इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि यहाँ से इधर को इस तरह से इधर को जाएगा, एंड दिस फिक्टिशियस बैटरी इज आल्सो अक्रॉस दिस साइड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, इट सपोर्ट, वो सपोर्ट करता है किसको, द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल को क्या कर रहा है, द पोटेंशियल बैरियर को। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। इसमें होता क्या है, इन रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, द अप्लाइड वोल्टेज, इन रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, द रिवर्स बाइस वोल्टेज क्या करती है, द रिवर्स बाइस वोल्टेज, the reverse bias voltage, this is your reverse bias voltage, this reverse bias voltage क्या करती है, सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है, see this supports the potential barrier, this supports the potential barrier। अगर वो पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट कर रहा है, इस बात का मतलब क्या है, इट सपोर्ट्स द पोटेंशियल बैरियर, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी विड्थ होगी, विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर, वो क्या करेगी, पोटेंशियल बैरियर में इंक्रीज, पोटेंशियल बैरियर की जो होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, यहां पे जो करंट काम करता है इन द रिवर्स बायसिंग, इट इज नोन एज योर, किस तरह से इसको बोलते हैं, इसको आप बोलते हो रिवर्स करंट बोलते हो, और लीकेज करंट भी आप इसे बोलते हो। ठीक है, इन फॉरवर्ड बाइसिंग में आप करंट को क्या बोलते हो, फॉरवर्ड करंट बोलते हो। ठीक है, यहां पे जो करंट होता है, इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स लीड्स टू करंट। ठीक है, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज मतलब आपका ड्रिफ्ट करंट यहाँ पे काम करता है। ठीक है, एंड चीज नहीं क्लियर हो गया आपके पास। ठीक है, अब जरा सा इसके बारे में और समझते हैं। देखिए होता क्या है, इन रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, देयर इज नो कंडक्शन अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। व्हाई, मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से यहाँ पे कंडक्शन क्यों नहीं होगी, आपको समझना पड़ेगा। जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ रहे थे, जो मेजॉरिटी कंडक्शन था वो वाज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बट व्हेन वी आर डीलिंग विद द रिवर्स बाइसिंग, जो आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट का फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देयर इज नो फ्लो ऑफ कंडक्शन करंट में इंजेक्शन ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स। पर होता क्या है, हाउ वर द माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर जो होल्स हैं किसमें, इन द पी रीजन, दिस इज एन region and this is their p region। ठीक है, in your n region the minority carriers क्या होंगे, in the n region your minority carriers क्या होते हैं, आपके holes होते हैं, and in the p region the minority carriers are your electrons। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं नेगेटिव p के साथ जुड़ा है, पॉजिटिव आपका n के साथ जुड़ा है, so as a result of which आपका जो minority charge carriers they will be repelled। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट सिस्टम में क्या जो करंट होगा वो जनरेट करेगा, किसकी वजह से, ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इन रिवर्स बायसिंग द करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, और उस करंट को आप बोलते हो रिवर्स करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब यहाँ पे क्या है, विड्थ आपकी इंक्रीज कर रही है बाय पोटेंशियल V, तो इनिशियल पोटेंशियल जो आपको इस तरह से दिखना चाहिए था, आपको किस तरह से दिखता है, अब वो इस तरह से दिखता है, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस जो आप ऑब्जर्व कर पाते हो। ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू द रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पेपर में आपसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, पेपर में क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजन। असर्शन कैन बी गिवन एज, जैसे असर्शन वो आपको इस तरह से बोलता है कि इन अ रिवर्स बायसिंग, ड्यूरिंग द रिवर्स बायसिंग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर लीड्स टू द करंट। ठीक है, या फिर आपको ऐसे बोल सकता है, इन द असर्शन में आपको इस तरह बोल सकता है कि दैट इन द रिवर्स बायसिंग देयर इज नो करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और रीजनिंग इसकी देगा कि मतलब इन द रिवर्स बायसिंग द करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या गलत है, लेट्स जस्ट लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन द रिवर्स बायसिंग द करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, सॉरी ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इन द रिवर्स बायसिंग जो आपका करंट होता है वो किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, not due to the minority charge, sorry, not due to the majority charge carrier, but rather in the reverse biasing the current is due to the minority charge carriers। ऐसा क्यों होता है, फिर से समझिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो रिवर्स बाइसिंग होता है, रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या होता है, the negative terminal of the battery is connected to the P side of the diode while the N side of the diode is connected to the
पॉजिटिव साइड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, अब हमें पता है कि इन एन साइड, इन द एन साइड द होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स एंड इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, द पॉजिटिव विल रिपेल द होल्स, इसके वजह से होल्स पीएन जंक्शन की तरफ को मूव करना शुरू करेंगे। सिमिलरली इन द एन साइड, इन द पी साइड वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, और एन साइड को हमने पॉजिटिव के साथ जोड़ा हुआ है, पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स। अब पी को हमने पॉजिटिव के साथ जोड़ा हुआ है, सॉरी पी को अपने नेगेटिव के साथ जोड़ा हुआ है द रिवर्स बायसिंग, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सो दे विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द जंक्शन डायोड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इन द रिवर्स बायसिंग द करंट का जो फ्लो होता है इट इज ड्यू टू द, इन द रिवर्स बायसिंग द फ्लो ऑफ द करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, वी आर टेक्निकली टॉकिंग अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस इन व्हिच वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। जब भी आप करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो, वी कॉल दैट दोज ग्राफ्स एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड द अदर इज द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ, व्हेन यू प्लॉट अ रिलेशनशिप, व्हेन यू make a graphical relationship between the forward bias voltage to the फॉरवर्ड करंट, जब आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट के बीच में रिलेशन प्लॉट करोगे, दैट इज नोन एज योर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब पेपर में मैं आपको एक बात बता दूं, इन एग्जामिनेशन इन वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सर्किट डायग्राम फॉर मेजरिंग द फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करने के लिए उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, दिस सर्किट डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करना है, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन दे कैन आस्क दिस थिंग, ठीक है। अब जरा सा जब हम क्या करते हैं, दिस इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, व्हेनेवर वी हैव टू प्लॉट द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो आप एमीटर यूज करते हो दैट इज मिली एमीटर, ठीक है। जो भी आप इसमें एमीटर यूज करते हो दैट इज योर मिली एमीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर एंड मिली एमीटर यूज करो, तो यू डोंट यूज माइक्रो एमीटर, यू डोंट यूज एमीटर, बट रादर यू ऑलवेज यूज द मिली एमीटर, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वी गेट दिस काइंड ऑफ कर्व, ठीक है। जब हम इस तरह के कर्व को बहुत ध्यान से देखते हैं तो वी सी दैट आपकी जो कर्व की वेरिएशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है जो हमने यहाँ पे प्लॉट की हुई है, ठीक है। और जब हम इस तरह के कर्व को प्लॉट करते हैं, वी सी दैट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पॉइंट जिसको आप नी वोल्टेज बोलते हो, इस पॉइंट के बाद आपकी जो करंट की वेरिएशन होती है बहुत तेजी से बढ़ती है, ठीक है। करंट जो होता है बहुत तेजी से बढ़ता है, ऐसा क्यों होता है, इस जिसको आप बोलते हैं नी वोल्टेज, ये भी याद रखिएगा, नी वोल्टेज इज अ टर्म व्हिच इज एसोसिएटेड विद द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, ठीक है। अब जब इस कर्व को हम देखते हैं, इस कर्व को हम बहुत ध्यान से प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो वी फाउंड दैट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर वोल्टेज कॉल्ड V इज इक्वल टू नी वोल्टेज एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं V इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको बोलते हैं, लेट्स डिनोट दिस थिंग एज VK, वोल्टेज VK दिस इज नोन एज नी वोल्टेज, द कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, ठीक है। तो आपसे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो हम इस कर्व को प्लॉट करते हो, जब हम देखते हैं, जब कैरेक्टरिस्टिक कर्व को हम प्लॉट करते हैं, वी सी दैट आफ्टर V is equal to VK, the conductivity is very high. Conductivity is very high. ठीक है, आफ्टर V is equal to VK, the conductivity is very high. ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बिकॉज इट इज एट दिस वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज ऑफ फॉर पीएन जंक्शन डायोड द पोटेंशियल बैरियर इज ओवरकम एंड बियॉन्ड इट द करंट इंक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीजिंग ठीक है, increase in forward voltage, ठीक है। if the forward voltage is increased beyond a certain safe value, ठीक है, extremely large current will be produced which may be destroyed in the PN junction diode, ठीक है। अब आपको समझिए हुआ क्या, देखिए हमने क्या लिखा कि after V is equal to VK, we have written here that after V is equal to VK the conductivity is very high, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, why is it so, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, द रीजन फॉर दिस हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ at V is equal to VK, at V is equal to VK, V
ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, हम पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है। एंड द मोमेंट वी ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर, तो अब हमें एक चीज का एहसास होता है, द मोमेंट वी ओवरकम द बैरियर वी रियलाइज दिस थिंग कि अब करंट के फ्लो के लिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन सिस्टम में नहीं है, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द फ्लो ऑफ द करंट इन द सिस्टम। एज अ रिजल्ट आफ्टर V इज इक्वल टू वी के द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। और अगर मैं कंडक्टिविटी को इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद क्या होता है, आपकी करंट की जो वैल्यू थी बहुत तेजी से बढ़ती है और भी तेजी से बढ़ती है, एंड एज अ रिजल्ट द पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि जब हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को कर्व को प्लॉट करते हैं, वी सी दैट आपको जो कर्व की वेरिएशन होती है इस तरह से होती है, आफ्टर V इज इक्वल टू वी के द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस रैपिडली, ठीक है। बट वो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम के लिए इंक्रीज करते रहेगी, नहीं, एक पर्टिकुलर सेफ वैल्यू होती है जिसके आगे इफ यू गो बियॉन्ड दैट वैल्यू ऑफ पीएन जंक्शन डायोड गेट्स डिस्ट्रॉयड बिलो नी वोल्टेज से जब नीचे काम करते हैं, बिलो नी वोल्टेज, आपको क्या है, आपका सिस्टम धीरे धीरे क्या है, बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर रहा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है, व्हेन वी द कंडक्टिविटी आफ्टर V is knee voltage is high or low, अगर if they say that the conductivity after the knee voltage is high, what is the reason for this? तो reason उसका ये होता है कि after V is equal to VK we have already overcome at V is equal to VK we have already overcome the potential barrier। अगर हम potential barrier को overcome कर चुके हैं, इसका मतलब ये है कि करंट के फ्लो को करने के लिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वो आराम से करंट जो है पूरे सिस्टम में फ्लो कर सकता है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच एट V इज इक्वल टू VK, जैसे आप V इज इक्वल टू VK को क्रॉस करते हो, द कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस वेरी रैपिडली, द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस वेरी रैपिडली, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि करंट की वैल्यू इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए या इनफाइनाइट वैल्यू के लिए इंक्रीज करते रहेगी, नहीं, आफ्टर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डायोड माइट गेट डिस्ट्रॉयड, इसलिए आप उसको सेफ लिमिट से ज्यादा यूज नहीं करते हो, ठीक है। इसको आप बोलते हो दिस इज नोन एज अ नी वोल्टेज, and you should always remember this thing that the concept of the knee voltage is associated with the forward characteristics, ठीक है। next is the reverse characteristic, ठीक है। तो when we talk about the reverse characteristics, again वही चीज है, जब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप्स प्लॉट करेंगे बिटवीन द रिवर्स बायस एंड द रिवर्स करंट के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, यू ऑलवेज यूज द माइक्रोमीटर, ठीक है। यू नेवर यूज माइक्रो दिस मिलीमीटर, यू यूज माइक्रोमीटर, आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, माइक्रोमीटर को यूज करते हो, ठीक है। अब रिवर्स बाइसिंग में जो करंट होता है, ठीक है, अब ये जो करंट होता है ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, इसलिए आप यहाँ पे माइक्रोमीटर यूज करते हो। आप फॉरवर्ड बाइसिंग में कौन सा मीटर यूज करते हो, यू यूज मिलीमीटर, बिकॉज दैट द करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बट इन द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंस द करंट फ्लो ऑफ द करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वी यूज माइक्रोमीटर टू मेजर द वैल्यूज, ठीक है। जब हम इस वैल्यू को प्लॉट करते हैं, वी सी दैट आफ्टर पर्टिकुलर वैल्यू विच इज नोन एज योर ब्रेक डाउन वोल्टेज, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जिसको आप क्या बोलते हो, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हो, योर सर्किट क्या करता है, द करंट इन द आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो आपकी करंट की वैल्यू है दैट इज इंक्रीजिंग अब्रप्टली, ठीक है। अब क्या है, अगर एक पर्टिकुलर अगर क्या है, अब वैल्यू जो है अब्रप्टली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इफ दिस करंट एक्सीड्स द रेटेड वैल्यू, अगर ये जो करंट की वैल्यू है अपनी वैल्यू को एक्सीड कर जाए, द मोमेंट इज एक्सीड दिस वैल्यू, तो पीएन जंक्शन डायोड जो आपका क्या होगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर आपको किस चीज का ध्यान रखना है, इन द रिवर्स बाइस, इन द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द कर्व व्हिच इज प्लॉट, हियर वी हैव द ब्रेकडाउन वोल्टेज आफ्टर व्हिच द करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एब्रप्टली, और आपका जब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हो, द करंट का फ्लो जो होता है इट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। एंड इन द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स में वी यूज माइक्रोमीटर, नॉट द मिलीमीटर या नॉट सिंपल एमीटर को यूज नहीं करते, वी ऑलवेज यूज द माइक्रो एमीटर को हम यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई थी बात, ठीक है। नाउ यहां पे हम एक चीज और चेक पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन जनरल द relation for current I in junction diode is
given by I is equal to I naught एक्सपोनेंशियल EV ओवर KT माइनस वन। ठीक है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। यू डोंट हैव टू गो इन द डिटेल्स। पेपर में ज्यादा ज्यादा पूछेगा तो सिर्फ आपको रिलेशंस पूछेगा वेर ईच टर्म हैव देयर नेचुरल मीनिंग्स। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है कि दैट इन फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, डेल्टा V over delta I is equal to KT over EIF. IF represents your forward current, and at room temperature, resistance RAC will be equal to 26 cross 10 raised to power minus 2 over IF. This is something which comes after the solving, substituting the values. ठीक है, क्लियर होगी बात। एंड इन द रिवर्स बायसिंग, IR is equal to minus I naught। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड वी कैन यूज पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ वी कैन कम आउट टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर, दैट इज द डायनामिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस। इट इज नथिंग बट द डायनामिक रेजिस्टेंस और द एसी रेजिस्टेंस नथिंग बट द रेशियो ऑफ द incremental increase in the voltage delta V over delta I. Incremental increase in the voltage over incremental increase in the current. This is known as a dynamic resistance. ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज फ्रॉम वेयर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैन बी आस्क्ड। ठीक है, with this आज का लेक्चर हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग विद द यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द मीनिंग्स ऑफ द फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अगर आप कोई चीज समझ आ चुकी है तो कल हम जब PN junction diode is rectify करेंगे and when we will study about the various applications of the junction diodes। ठीक है, आई होप आपको कल और अच्छे से चीज समझ आ जाएगी एंड बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ऑन दैट नोट आई वुड से अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, मेक श्योर दैट यू कमेंट in the comment section. I will definitely reply to your queries. Okay, thank you so much. Good luck. Bye bye. Take care and best of luck.